A very good morning to all of you. So far, we have done two poems of your book, Flamingo. First was My Mother at 66, written by You Will Tell Me. Second was An Elementary School Classroom in a Slum, written by That's Again You Will Tell Me. And this is your third poem, Keeping Quiet. Okay, Keeping Quiet is written by Pablo Neruda. It's basically peace prevailing poem in which he urged the human uh, being to prevail peace in this world, to stay away from war, from desires, from jealous. And the main theme is he is asking us to introspect ourselves. Introspect means inspection means like the स्कूल कंडक्ट इंस्पेक्शंस होते हैं स्कूल में, ठीक है ना, सब कुछ चेक करने के लिए. द सेम वे इंट्रो मीन्स होता है योर ओन सेल्फ. सो हियर इन दिस पोएम द पोएट वांट अस टू इंट्रोस्पेक्ट आवर ओन सेल्फ, यानी कि हमें खुद का इंस्पेक्शन करना चाहिए टू सी whether we are fulfilling the reason of being over this earth or not. Okay, so this the whole poem is about. Let's start with the first stanza. This is first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So here in this first two lines, the poet is asking us to be quiet. First of all, he wants us to count up to 12. And with all this counting, हमें क्या करना है? We just need to be still. Or for 1 second, for at least once. We would not do any kind of movement, whether it's physical or mental. हमें कोई भी कैसा भी मूवमेंट नहीं करना है. लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. ओके, सो मीन्स we need to stop every activity which is physical or mental. We need to start an activity which is spiritual. ठीक है, हम जो अपनी रूटीन में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हमें थोड़ी देर के लिए बंद करके हमें क्या करना है, ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करना है विच विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट, लाइक मेडिटेशन, लाइक स्पिरिचुअल एक्टिविटी. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस पोएम में से, नाउ वी विल काउंट टू 12. वाई द पोएट हैज़ आस्क्ड अस टू काउंट अप टू 12. उसने क्यों नहीं कहा कि चलो 5 तक काउंट करते हैं या 6 तक काउंट करते हैं, 12 तक क्यों कहा है? सो द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट in 1 year there are 12 months, है ना. ओके, एंड व्हेन देर इज़ क्लॉक स्ट्राइक 12 o'clock, जब वॉच में 12 o'clock होते हैं तो कैसे होती हैं? बोथ द निडल्स, है ना, दे कम एट अ सिंगल पॉइंट, मीन्स एट दैट टाइम देर इज़ अ यूनिटी इन दैम. सो द पोइट वॉन्ट अस टू बी यूनाइट इन द सेम मैनर, द होल ह्यूमैनिटी, the whole human beings, he want us to unite like that. So that's why he asked us to count up to 12. Now let us see the second stanza. It would be an exotic movement, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Okay, so it would be an exotic movement. So कह रहा the movement, which movement? The movement when all human beings will remain quiet and they will not do anything. वो जो movement होगा उस टाइम पे क्या होगा? Without rush, means कोई जल्दबाजी नहीं होगी without engines, वहाँ पे कोई भी किसी भी कन्वेंस का कोई शोर नहीं होगा. and we will all be together in a sudden strangeness. ये लाइन दोनों important है, that we will all be together in a sudden strangeness. इसका क्या मीनिंग है? सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स वो स्ट्रेंजनेस कैसे आई? बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ आर क्वाइट. सभी लोग एकदम चुप हैं, सभी लोग इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपनी कंसीन्स को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इट्स अ सडन स्ट्रेंजनेस. तो इस स्ट्रेंजनेस में जब सभी लोग एक काम करेंगे तो क्या होगा? एक टुगेदरनेस होगी. एंड फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. और उस टाइम जब आप कोई भी ह्यूमन कोई और काम नहीं कर रहा होगा तो उस समय क्या होगा? जैसे जो फिशरमैन है जो कि वेल्स पकड़ते हैं, वो वेल्स नहीं पकड़ रहे होंगे तो उस टाइम वेल्स को भी कोई हार्म नहीं हो रही होगी. और जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं
वो अपने हर्ट हैंड्स को देख सकेंगे। हर्ट हैंड्स क्यों बोला है? बिकॉज सॉल्ट में एसिड होता है। सो दोज पीपल हु केम इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद सॉल्ट, और है ना, विद दैट केमिकल, they got wounds and cuts over their hands and legs ना, so their condition is not so good because वो काफ़ी टाइम तक लंबे समय तक नमक के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके हाथ पैर गल जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। सो दैट्स वाई इज आस्किंग अस टू जस्ट टू नॉट डू एनीथिंग फॉर अ मोमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, दिस इज थर्ड स्टेंजा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स का मीनिंग है न्यूक्लियर वेपन से, यानी कि गैसियस वेपन्स जो होते हैं, यानी कि वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ठीक है। वेयर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, बिकॉज वी नो जब भी न्यूक्लियर वॉर्स होती है तो वहाँ पे कोई भी सर्वाइवर्स नहीं होते हैं। वो वॉर्स जो होती हैं दे आर कैटेस्ट्रॉफिक, यानी कि वो सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। उस टाइम पे क्या होगा? व्हेन देयर विल बी नो वॉर्स, तो जो हमारे सोल्जर्स होते हैं दे आर सेविंग आवर बॉर्डर्स फॉर, किसके लिए सेव करते हैं? वो हमारे लिए सेव करते हैं, बट दे डोंट हैव एनी पर्सनल रीज़न और पर्सनल ग्रज अगेंस्ट द एनिमी सोल्जर, है ना। तो उनके कोई पर्सनल ग्रज नहीं होते। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे दे विल ऑल्सो वियर क्लीन क्लोथ्स एंड दे विल वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी कि वो लोग हाथ में हाथ डाल के, यानी कि एक साथ पीसफुली रह सकेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो कहता है कि जो मैं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सारे काम बंद करके इनएक्टिव हो जाओ। वो कहता है लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कहता है लाइफ वो है जो ऐसा कि आप इसके बारे में सोचते हो। और वो कहता है कि मैं डेथ के बारे में, मेरा डेथ से कोई भी मैं डेथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज डेथ इज़ द यूनिवर्सल एंड अल्टीमेट ट्रुथ। लेकिन डेथ जो है इट विल डेफिनेटली कम वन डे, लेकिन हम डेथ के बारे में सोच सोच के डेली नहीं मर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। फोर्थ स्टेंजा, this stanza is also very important. Last stanza is very important. Last and the first stanza. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो कहता है कि if we were not so single-minded, single-minded means क्या है यहाँ पे? सिंगल माइंडेड मीन्स है यहाँ पे दैट वी आर वेरी इनडिफरेंट टू एवरीथिंग। एक मिनट, ये ब्लर हो गया है, मैं इसे क्लियर करूँ। क्या? सो ही इज सेइंग दैट इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड से मीनिंग ये है वी वर सो इनडिफरेंट टू अदर थिंग्स, वी आर सो बिजी एंड वी आर सो सेल्फिश इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग। हमें किस चीज़ से मतलब रह गया है? सिर्फ कमाने से और खाने से। हम बाकी किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जस्ट टू कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी लाइफ्स को, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर, वी रिमेन बिजी इन ऑल दीज थिंग्स, है ना। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। मैं कहता है काश ऐसा हो, काश मेरे कहने पे आप लोग एक बार साइलेंट हो, एंड माइट दैट ह्यूज साइलेंस बी इंटरप्ट, माइट दिस सैडनेस बी इंटरप्ट। उससे क्या होगा? ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो सैडनेस है, वहाँ पे एक इंटरप्शन आएगा, वहाँ पे एक फुल स्टॉप आएगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, यानी कि मीन्स इट्स बीन सो लॉन्ग वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, है ना। इट्स बीन सो लॉन्ग वी आर नॉट गेटिंग द राइट रीज़न टू बी देयर ऑन दिस अर्थ, सो एंड वी आर थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। सो कहता है कि उसने फर्स्ट पैराग्राफ में, इससे प्रीवियस पैराग्राफ में भी कहा था नो ट्रक विद डेथ, यानी कि डेथ के साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डेथ तो आएगी आएगी, बट डोंट थ्रेट योर सेल्फ विद डेथ, वो तो एक दिन आएगी। बट वी नीड टू इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ सिंगल माइंडेडनेस। हमें ये सेल्फिश, जो हम इतने सेल्फिश है ना, उस सैडनेस को हमें हटाना होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, and now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So this is the last paragraph, again it is very important. So यहाँ क्या कह रहा है पोएट?
परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कहता है वी नीड टू लर्न फ्रॉम द अर्थ एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। इस धरती पे कुछ भी जो पड़ी होती हैं चीज़ें हमें कैसी दिखती हैं, इट सीम्स डेड टू अस एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो सो हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ सीड, एक सीड है जो कि अनबॉर्न सीड है, वो अभी कैसा दिख रहा है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, कंडीशंस वेदर कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, तो वो जर्मिनेट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको पानी, प्रॉपर हवा और सनलाइट मिलेगी, इट विल ग्रोन, है ना। सो नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। सो ही इज़ again saying us that now the meditation is done and this is the time. Okay, so again just back to normal life, but he just want to make us think about all the things which we are doing. He is just emphasizing us to do an introspection for ourselves, to make our lives, to improve our lives. Okay, वो नहीं चाहता कि बॉर्डर पे वॉर्स हों, ग्रीन वॉर्स हों, न्यूक्लियर वॉर्स हो, नहीं चाहता, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर ये, दे आर नॉट पर्सनल ग्रजेस बिटवीन द सोल्जर्स बिकॉज इट्स ऑल पॉलिटिकल बेस. सो हियर ही वॉन्ट टू वेक अस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. सो पोएम की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी. ओके, आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर.